सीरीज के जो भी चैप्टर्स हैं आपके प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। प्रैक्टिकल जब आप लोग रहें तो भी स्टार्ट हो तो बेटर होगा, ठीक है। जब हमारा फिजिकल अपीयरेंस रहे तभी हम प्रैक्टिकल वर्क को स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी ये थ्योरेटिकल सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी में आपका साइबर एथिक्स भी है, चैप्टर 6 है जो, तो वी कैन स्टडी दिस चैप्टर हियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर साइबर एथिक्स, ठीक है। Try to understand this meaning of these two words, cyber and ethics. Cyber and ethics. Cyber means related to the internet. Cyber means related to the internet, or you can say that over the internet, or you can say that on the internet. That is your cyber. That is your cyber. And ethics means what? Moral. Ethics means what? Moral. In Hindi it is known as the naitik. In Hindi it is known as naitik. ठीक है, तो cyber ethics, ठीक है। if you are just following if you we are just following any ethics or rules over the internet, that is known as what? Cyber ethics. That is known as what? Cyber ethics. If we are just following any rules while using the internet, that is known as what? Cyber ethics. Clear to everyone? Cyber ethics. Cyber means on the internet, or you can say that over the internet. Ethic means moral. Ethic means what? Moral in the sense ki rule, ठीक है। मोरल मीन्स व्हाट? रूल, ठीक है ना। इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग एनी रूल ओवर द इंटरनेट, दैट इज नोन एज व्हाट? साइबर एथिक्स। लेट्स सी व्हाट्स योर बुक से। Introduction. We live in a world at a time which is often called information age, where information is freely available from any part of the world. As we know that today is the world of technology, and technology means what? Information. Technology which contains what? Information, ठीक है। तो today is the world of the information. Today is the world of information. Information in the sense की process data, ठीक है, that we kept in our devices like in computer system, mobile phone, ठीक है, we just kept the informations. The internet has revolutionized the world, and people are getting used to having access to whatever information they want anytime, anywhere, and from a wider range of computing devices, ठीक है। And we can use all type of information at any time, ठीक है, at anywhere, at any place, ठीक है, with the help of our computer system, ठीक है, or all other electronic devices like your smartphones, ठीक है, tablets, laptop, ठीक है। By using all devices we can use any type of information, ठीक है, at any time, anywhere, at any place, ठीक है। तो this is the benefit of computer system, we can use the information at any time, anywhere, at any place. See, all this has made available to us and evidence of information, but with it comes responsibility of using this information and technology ethically, ठीक है। No doubt we are using the information, but we have some rules also, ठीक है, that we have to follow over the internet while using the information. In this chapters we shall talk about cyber ethics related to e-commerce, ठीक है। In this chapter we are going to study what are the cyber ethics while we just using what? E-commerce. E-commerce means what? Tell me, what do you mean by e-commerce? Say. Electronic commerce, sir. Electronic commerce, or you can say that Electronic commerce. yes, if we are just performing any type of business, over the internet is known as what? E-commerce. E-commerce means online business, online shopping, you can also say that. Online shopping in the sense we can Flipkart na. Flipkart, ठीक है, Flipkart, Quikr, OLX, these are all the example of e-commerce websites, ठीक है। So we can perform all type of business, we can perform all type of business like we can sell, purchase, ठीक है, or advertise things over the internet. So students, if we are just doing e-commerce over the internet, we have to follow some instructions, ठीक है, some rules, we have some moral values while using the e-commerce, intellectuals, digital properties. बेच भी सकते हैं क्या सर? Yes, you can sell also, ठीक है। For the sell purpose we use OLX, Quikr, Quikr. Yes, So while using e-commerce, intellectual, we have some digital property also along with software license, ठीक है। So we have some software license also, ठीक है, open source movement and digital divide, etc. In this chapters we are going to study we are going to study ethics, ठीक है, about e-commerce,
ठीक है, what are intellectual rights, what are digital rights, properties, digital property rights, software license, what are the software license, ठीक है, what are this we have to study, open source softwares and many more things we are going to study like your digital device in this chapter. So one by one we are going to study. First topic is your cyber ethics for e-commerce. Cyber ethics. Ethics means, tell me, what do you mean by ethics? Ethics, हाँ, moral values you can say that, ठीक है ना, moral values, ठीक है. So let's see what is this. E-commerce refers to the occurrence of common activities online or electronically. So you can say that e-commerce is the buying or selling of goods and service over electronic networks like internet, and making payments or transferring funds over electronic networks like internet. As you all know that, ठीक है, with the help of e-commerce we can just buy or sell any products over the internet, ठीक है, and after that we just perform the payment also, ठीक है, after the purchasing a product, after the purchasing a product or sells a product, we just perform what? Voice is Payment of. excuse me, sir. Your voice is not clear. Network is unstable. Wait for a moment. Now it is clear. no, sir. Okay. ठीक है, तो after e-commerce means if we are using e-commerce, we can perform the banking transaction also, means we can just make the payment also over the internet while using what while using internet, ठीक है, and making payment or transferring funds over electronic networks like internet. While buying or selling goods or service over internet, each stakeholder must stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or fooled in any form, ठीक है. Whenever we are just giving the payment, ठीक है, are receiving the payment over the internet while performing the e-commerce, we all have to be alert. We all have to be alert. Either customer or seller must both have alert. Both have to alert कि no one just made them fool or cheated, ठीक है. आपको क्या रहना होगा? अलर्ट रहना होगा, चाहे जो आपका शॉपकीपर हो या फिर क्या हो, कस्टमर हो, दोनों को क्या रहना होगा? अलर्ट होना होगा, ताकि कोई आपको क्या कर सके, चीट ना कर सके, कोई आपके साथ क्या कर सके, फ्रॉड ना कर सके, ठीक है. जब भी आप क्या करते हो, ई कॉमर्स पे पेमेंट वगैरह करते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके साथ क्या ना हो, चीट ना हो, ठीक है, और आपको कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, आपके साथ. लेट अस टॉक अबाउट द एथिक्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स, ठीक है. क्या सारे वो आपके एथिक्स होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? जब आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ चीटिंग हो चुकी है, ठीक है. इस तरीके से ही पता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ता है. ठीक, तो बताया जाएगा आपको कैसे आपको बच के रहना है, ठीक है. फर्स्ट इज योर प्राइवेसी. फर्स्ट आपका टर्म्स आ रहा है प्राइवेसी, ठीक है. हमको प्राइवेसी मेंटेन करना है, ठीक है. जो भी हमारी प्राइवेसी है, मीन जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, उसे क्या करना होता है, हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे सेफ रखना पड़ता है, ठीक है. सबको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है. आप कहाँ करोगे इसको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है. वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है. वो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि आप कहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन को, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते हो, ठीक है. किसी को भी आप शेयर नहीं करोगे, कहीं पे भी आप शेयर नहीं करोगे, ठीक है. किसी भी वेबसाइट को आप विजिट नहीं करोगे, ठीक है. कहीं पे भी किसी लिंक पे आपको डायरेक्टली नहीं क्लिक करना होता है, ठीक है. क्लिक कर भी दिए तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब शेयर ना करो, ठीक है. Yes, sir. ठीक है. लेट्स सी. इन जनरल, प्राइवेसी मींस द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन व्हाइल कैरिंग आउट सम ऑनलाइन एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन, ठीक है. वही बता रहा है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या रखना होता है, सेफ रखना होता है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है. वो आपकी क्या होती है, प्राइवेसी. प्राइवेसी मीन्स ओवरऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन. प्राइवेसी मीन्स व्हाट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है. इन ई कॉमर्स स्पेशली इट इज रिलेटेड टू अ कंपनी पॉलिसीज ऑन द यूज ऑफ यूजर डाटा, ठीक है. ई कॉमर्स में अगर आप आते हो, किसी कंपनी की बात करते हो, ठीक है, कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसका भी क्या होगा, कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा, ठीक है. तो उसको कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो शेयर नहीं करना चाहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना नहीं चाहेगा, ठीक है, और सबसे नहीं करेगा. एथिकली बोथ द बायर एंड द सेलर द मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, ठीक है. पहला एथिकल आपको मतलब कि जब भी आप ई कॉमर्स परफॉर्म करोगे, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है. चाहे आपका शॉपकीपर हो, मीन्स जो सेलर हो, या फिर जो क्या हो, कस्टमर हो, दोनों को क्या करना होगा, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं आपस में शेयर करने होंगे, ठीक है. कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा, ठीक है. पर्टेनिंग टू द ट्रांजेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है. किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन आप ई कॉमर्स साइट्स पे आप करते हो, तो जो आपका जो सेलर है और जो आपका
कस्टमर है, दोनों क्या करेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड ई कॉमर्स कंपनी मस्ट क्लियरली स्टेट हाउ इट इंटेंड टू यूज द कस्टमर्स डाटा कलेक्टेड दिस वे सच एज यूजर लोकेशन, यूजर बाइंग हिस्ट्री, यूजर्स प्रेफरेंस एक्सेट्रा, और वेदर द कस्टमर कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जैसे अगर आप ई कॉमर्स साइट पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो तो ये रिस्ट्रिक्टेड होगा कि जो शॉपकीपर है, जो मतलब सेलर है, वो क्या करेगा, आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अगर आप शेयर करते हो तो उसका वो मिसयूज नहीं करेगा, उसका वो मिसयूज नहीं करेगा। कि मीन्स जैसे आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर लोकेशन, ठीक है, योर शॉपिंग हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, मतलब किसी दूसरे को वो नहीं बता सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। जो क्या होगा, कौन होगा, जो सेलर होगा, जो कौन होगा, सेलर होगा, मीन जो शॉपकीपर, आप अपनी अपनी भाषा में समझे आप। ठीक है, तो जो शॉपकीपर होगा वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसको भी पता होना चाहिए, जिस सेलर से आप प्रोडक्ट को आप अपने ले रहे हो। ठीक है, an important factor of privacy is the consumer consent, whether the consumer, हाँ बोलो। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से करते हैं हाँ तो उससे भी हम लोग अपना यूजर शेयर करेंगे तो वो नहीं कर सकता है ना, वो नहीं करेगा। ठीक है, बीच में अगर कोई आपके साथ चीटिंग कर लेता तो वो बात अलग होगी, लेकिन जो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है, रेपुटेटेड कंपनी है, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रेपुटेटेड सेलर है, तो वो अपना बिजनेस क्यों खराब करना चाहेगा। एक बार उसके साथ चीटिंग हो गई, आप इस तरीके से आप देखो एग्जांपल, अगर आप लोग किसी दुकान पे आप जाते हो, ठीक है, कोई भी आपको सपोज दैट आप अपने लिए ड्रेस खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो उस दुकान पे आप गए, ठीक है, और उस दुकानदार ने आपके साथ क्या कर दिया, चीटिंग कर दिया। चीटिंग इन द सेंस कि जो आपने ड्रेस लिया वो कैसा ले दिया, खराब दे दिया आपको। ठीक है, उसमें फॉल्ट है, ठीक है, कहीं से उसमें कटिंग है, ठीक है, या फिर उसकी मान के चलिए कि उसकी जो कलर है वो फेड हो गया। ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको, मतलब कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो गया, या फिर आपसे पैसा ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप अगली बार उस दुकान पे जाओगे, नो सर। नहीं जाओगे। ठीक है, तो No, सेम मैनर में उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो रेपुटेटेड है, ठीक है, उसको नेक्स्ट टाइम भी बिजनेस करना है, ठीक है, उसकी भी मार्केट अपना मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट में उसका प्लेस है, उसके शॉप का, उसके नाम का। ठीक है, तो क्यों खराब करना चाहेगा। ठीक है, चीटिंग कौन करता है, जो बीच में वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे सेंडर है और रिसीवर है, मीन्स हमने जो इन्फॉर्मेशन सेंड किया, रिसीवर ने उसको क्या किया, रिसीव किया, तो उस ड्यूरेशन में ही आपका इन्फॉर्मेशन क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ हमें बचना होता है। बाकी आप तो ठीक ही हो, आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्राइवेसी आप खुद मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, जो आपका सेलर है, ठीक है, जिससे आप खरीद रहे हो, प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, वो भी सही है। बीच में ही आपको दिक्कत होती है कि बीच में ही आपका इन्फॉर्मेशन क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। ठीक है, सी एन sir, इम्पोर्टेंट courier service. हाँ क्या कह रहे हो, Sir, courier नहीं service नहीं, में भी कुरियर data तो चोरी होती दूसरी पार्ट हो गया, कुरियर तो दूसरी चीज है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं। सर अमेजोन हाँ हाँ, अमेजोन है आपका, अमेजोन हाँ अमेजोन आपका वेबसाइट है जिस पर परचेसिंग कर सकते हो। ठीक है, ये ई कॉमर्स का है एग्जाम्पल। हाँ अमेजोन का ई कॉमर्स है। हाँ ओके सर। An important factor of privacy is the consumer consent, whether the consumer is given a choice to decide what the information can and cannot be used for। ठीक है, कंज्यूमर कंसर्ट, ठीक है, ये भी है कि कई सारे कंपनीज होती हैं ई कॉमर्स पे, वेबसाइट्स हैं जो कंज्यूमर को कुछ अपने राइट्स देते हैं कि वो कितना इन्फॉर्मेशन वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना होता है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसी को आपको क्या करना होता है, शेयर करना होता है। Usually, when the proper security system are in place, the user will not mind sharing the information necessary for a transaction to take place। कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी पूरी तरीके से अवेलेबल होती है उस वेबसाइट्स पे, ठीक है, उस कंपनी में, ठीक है, जहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वहाँ पे क्या होगा, जो भी वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में आपके क्या होंगे, सिक्योरिटी लगे होंगे, मतलब SSL होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होता है, डाटा जो भी आप शेयर करते हो वो इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या करते हो, शेयर कर लेते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं होती है। बट देन द consent will relate to whether the information can be further exploited। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वही सिक्योरिटी कुछ
आपको लूज है, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे आपको इस वेब सर्वर पे कंसर्न नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में कोई सिक्योरिटी लेयर नहीं है, तो वहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन क्या किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ओवरऑल यही है कि आपको अपनी प्राइवेसी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जो भी आपको सेलर है, ठीक है, ऑथेंटिकेट हो, उसी से आप क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, वहाँ पे ही आप क्या करोगे, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप शेयर करोगे, ठीक है। हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी, कैसे आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन करके रखोगे, सेफ रखोगे। सी, टू इंश्योर दैट यूजर प्राइवेसी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, फॉलोइंग मेजर मस्ट बी टेकन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कॉम्प्रोमाइज मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज बार बार मैं बोल रहा हूँ, बट No, sir. Yes, sir. कॉम्प्रोमाइज मीन्स व्हाट, Compromise. Yes, sir. कॉम्प्रोमाइज मीन्स शेयर, करना है, adjust शेयर, हाँ, करना है। नहीं कॉम्प्रोमाइज मतलब यहाँ पे शेयर होना, Adjustment, sir. ठीक है। जैसे कोई भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई, क्या हुआ सर? हाँ रुक जाओ, अनस्टेबल हुआ है, जब मैं रुक जाऊँ तो समझ लेना कि नेटवर्क अनस्टेबल हुआ है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि यहाँ 12 बजता है तो थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब करता है, 3-4 नौ करता है, ठीक है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज में मतलब कि शेयर करना, कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या करना, शेयर करना, ठीक है। किसी के साथ क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर आपको आपका जो प्राइवेसी है उसको कैसे आप मेंटेन करोगे, ठीक है, कैसे आप मेंटेन करोगे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। सी, first, the merchant or the seller must clearly state about how the user data will be used in the terms and condition to its side, ठीक है। जिस भी मर्चेंटाइज से Sir, voice is lagging, sir. Voice lagging, sir. हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, Sir, your voice is not clear. नाउ दिस सर टाइम, हेलो हेलो, नाउ इट्स क्लियर ना। Yes, सर इस sir. समय सही है. हाँ हाँ, वो हो जाता है, Yes sir. वो आपकी भी प्रॉब्लम रहेगी ना, तो कहोगे कि सर आप ही में दिक्कत है, ठीक है, आपका भी नेटवर्क अगर अनस्टेबल होगा तो कहोगे सर तो आप ही की आवाज नहीं आ रही, मैं तो यहाँ चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। वो पता है कहाँ पे हूँ मैं, No, sir. कहाँ पे है, sir? कहाँ पे सर? अच्छा बताओ तुम कहाँ पे है आपका सर? नेटवर्क इसके बारे में दिखाता है इतना सर, जानते हो, जब बताओ मैं होता अभी है कहाँ से आपका क्लास ले रहा हूँ, बताओ। रेड, आपका रेड हो जाता है। हाँ Sir, तो स्कूल में से ले रहे हाँ, होंगे आप. स्कूल में कहाँ से, स्कूल तो इतना बड़ा है, 62 एकड़ में स्कूल है। स्मार्ट किसी क्लास से. Smart सर class स्मार्ट से, क्लास sir. से. Smart class, sir. स्कूल का कोई नहीं, खुफिया स्मार्ट कमरा क्लास। होगा. नहीं सर स्मार्ट क्लास से ले रहे होंगे. नहीं, स्मार्ट क्लास में नहीं है। Sir, तो अपने ही क्लासेस से ले रहे होंगे क्या? किसी अबे क्लास मेरा से तो ले कोई रहे होंगे. पर्सनल क्लास किसी ही नहीं है। क्लासरूम Sir, से. किसी क्लास से ही ले रहे होंगे, sir. अभी किसी से हॉल ले में रहे कहाँ हैं, है, जो बॉयज वाला, जो फर्स्ट फ्लोर पे जो कंप्यूटर लैब है उसके बगल में जो ऊपर क्लास में ले रहे हैं. नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ पे इंदू मैडम नहीं Yes, बैठती sir. थी, Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, Yes, sir. वही yes, हाँ sir. वही जो smart चैम्बर class है था उसी हम को लोग क्लास का. बनाया गया है, जो कंप्यूटर लैब के नीचे जो Smart था, classes. Yes. ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। हाउ टू सेव यूजर प्राइवेसी, कैसे हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं, इतना भी जरूरी है। सब तो आगे पढ़ा ही जा रहा, मैं देख रहा हूँ 40 मिनट सब लोग यार थका, पूरा एकदम जबरदस्त पढ़ा ही रहे हैं लोग। Yes, sir. तुम लोग भी बोर हो जाते हो, स्पीड देखो, Yes, sir. सुबह आते हैं तो 70 नींद 80 आने पे लगती रहते हैं, है, अभी सर. देखो 47 पे, पता नहीं 30 कौन है और गायब है, पता ही नहीं हो। नींद आने लगती है, sir. सर कंप्यूटर क्लास में नहीं आते हैं. नींद तो नहीं आएगा, लेकिन मेक इंटरेस्ट, ट्राई टू मेक योर इंटरेस्ट, ठीक है। बात करो टीचर से, सर हाँ सर टीचर से कंप्यूटर बात क्लास करो। में चले जाते हैं. हाँ कंप्यूटर क्लास में सब भाग जाने जाते दो, हैं. आएंगे लौट के मेरे पास ही, आने दो मेरे पास ही आएंगे लौट के, जो जा रहा है ना वो आएगा ही। नहीं है हाँ सर मैथ के क्लास में 72 थे. हाँ 72 थे, अभी देखो कितने हो गए, कितना 47। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह थोड़ा चेंज करो, ठीक है। बढ़िया इंटरनेट 48. कनेक्शन, तो टेक यूजफुल आईएसपी, किसी अच्छे गुड आईएसपी से लो इंटरनेट कनेक्शन, तब अच्छा आएगा। देखो स्कूल का देखो कितना सही है, चलता है सही है। वाईफाई लगवाना पड़ेगा, सर, घर पे भी. सर ब्रॉडबैंड कौन है ये रो रहा है? स्कूल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है नेट. हाँ चलो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टू इंश्योर द यूजर प्राइवेसी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा क्या हो, कि जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन से प्राइवेसी वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो क्या है, द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट about how the user's data will be used in the terms and condition
ऑफ इट्स साइट्स। ठीक है, ये जो भी आप जिस भी कंपनी के वेबसाइट को आप यूज करते हो तो उस पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सारा क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए। ठीक है, सारा क्या होना चाहिए, वहां पे आपको पूरी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स है, ये सारे कंडीशंस होते हैं, ताकि वो जो आपका क्या है कस्टमर है उसको पढ़ सके और उसके बाद उस वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर सके। ठीक है, सेकंड थिंग, द मर्चेंट और सेलर मस्ट इंश्योर दैट द यूजर हैज गॉन थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन ऑन इट्स साइट्स प्रायर टू मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, मर्चेंट जो भी मतलब सेलर है, ये उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रखा होगा, जान चुका होगा, पढ़ चुका होगा उसके बारे में, तभी वो उस वेबसाइट से क्या करने जा रहा है, ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। ठीक है, तो ये मर्चेंट का वर्क होता है। ठीक है, जो भी मर्चेंट है, सेलर है, उसको उसका टास्क होता है ये। Third thing, the merchant must ensure the user about data safely by implementing proper data safety and security measures such as HTTPS protocols and other security mechanism to the user's data is safe from hackers too। ठीक है, ये merchant या फिर जो sellers होते हैं उसकी responsibility होती है कि जो भी customer आ रहा है उस वेबसाइट से आ रहा है तो उस वेबसाइट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्या रखेगा, सेफ रखेगा। इसलिए एक सेफ प्रोटोकॉल की यूज करना होता है, दैट इज HTTPS। HTTPS फुल फॉर्म बताओ आप, HTTPS बताओ आप लोग जल्दी से। Hypertext Transfer Protocol। हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर कॉल सिक्योर आल्सो, एस फॉर सिक्योर। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट होगा या फिर जो सेलर होगा, बोले थे हाँ बोलो, कौन है, बोलो कहाँ चले गए, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा तो बोल लेगा वो। ठीक है, तो जो भी मर्चेंट होगा, मर्चेंट मतलब समझते हो ना, व्हाट डू यू मीन मर्चेंट? सर व्यापारी, Sir। बिजनेसमैन, ट्रेडर, व्यापारी हाँ बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर भी उसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो आपका मर्चेंट होगा या फिर जो सेलर नहीं होता है, सेलर वही सैलरी मान। यस सर। विकास यस, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो जो भी सेलर होगा, मर्चेंट होगा, ठीक है, तो अपने Yes, वेबसाइट sir। को ध्यान रखेगा कि मीन जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसके वेबसाइट्स पे तो वो सिक्योरली हो, तो उसके लिए वो आपको एक सिक्योर प्रोटोकॉल को उसको यूज करना होता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। Last, the user must go through the terms and conditions of the self or merchant sites before providing any sensitive information and make sure that the site is too safe site by checking HTTPS protocol and padlock etc। ठीक है, जो यूजर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा कंसर्न मर्चेंट के लिए, सेलर के लिए, वही सारा ध्यान रखें। जो यूजर है मीन्स जो कस्टमर है वो भी क्या रहना, उसको भी क्या रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना होगा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का। ठीक है, उसको भी उस वेबसाइट्स उन्हीं वेबसाइट्स को यूज करना होगा जो क्या होगा, सिक्योर होगा, मीन्स की HTTPS के थ्रू ही जाना होगा। और पैडलॉक सिंगल, पैडलॉक साइन होता है ना, पैडलॉक साइन, पैडलॉक साइन होता है ना, ये क्या होता है सर? होता है। पैडलॉक साइंस। अरे Padlock किसी क्या वेबसाइट होता पे है? जो सिक्योर आपका जो वेबसाइट होगा उस पे पैडलॉक सिंबल बना होगा इस तरीके से। ठीक है, पैडलॉक सिंबल इस तरीके से बना होता है, Yes, तभी sir। उसको आपको क्या करना होगा, हाँ इसको पैडलॉक कहा जाता है, पैडलॉक। क्या करेंगे? इसको देखना होगा, ये सिंबल आपको दिखाई देगा उस वेबसाइट पे, तभी आपको वहां पे क्या करना होगा, उस वेबसाइट को यूज करना होगा। ठीक है, मेन ये रिप्रेजेंट करता है कि Yes, जो आप sir। वेबसाइट यूज करने जा रहे हो वो क्या है, सेफ है। ठीक है, ये बताता है, ये सिंबल बताता है कि जिस Secure है। हाँ रहेगा तो अनलॉक रहेगा तो वो रहेगा ही नहीं, वो सिंबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाते हो तो इस तरीके से वहां पे आपको दिखाई देगा, इस तरीके का सिंबल वहां पे दिखाई देगा, तो वो समझ लेना कि वो सेफ Yes, नहीं है, sir। वो सिक्योर नहीं है। अगर पैडलॉक आता है तो वो क्या है, आपका सेफ है। आई बात समझ में? सिक्योर है। सिक्योर है, यस। तो ये सारी चीजें हैं कैसे आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल यही था कि आप सर टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो करो। ठीक है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल को यूज करें, HTTPS के थ्रू, और पैडलॉक को आपको ध्यान रखना होगा। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ यस, बोलो। बोल भी नहीं रहे सर। आवाज थोड़ी clear नहीं है। अभी आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir, आ रहा है। सर अभी आ रहा है। ठीक, यस सर, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir, आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्रॉड।
फ्रॉड ऑन सोशल साइट्स, ठीक है, सोशल साइट इन द सेंस कि ओवर द इंटरनेट क्या क्या सारे फ्रॉड्स होते हैं आपके साथ, ठीक है, उसको जानना होगा। सी फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड द ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है, fraud committed over the internet is known as what? Online fraud. If any type of fraud happen over the internet is known as what? Online fraud. ऑनलाइन फ्रॉड में occur in many forms such as, ठीक है, किस तरीके के ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं देखो आप, नॉन डिलीवर फूड, नॉन डिलीवर्ड गुड्स, ठीक है, आपने जैसे कुछ कोई चीज आपने क्या किया, परचेस किया और आपको आपके घर पे नहीं आया, आपके घर पे नहीं आया, ठीक है, आपने बुकिंग कर दिया, आपने पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके घर पे आया ही नहीं, तो इस तरीके से भी आपका फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। सेकंड थिंग, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी, आपने एक ऐसे सर लेकिन उस पे तो कंप्लेंट कर सकते हैं हाँ सर, कर सकते कंप्लेंट हो, कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आएगी वो बता रहा है, पहले ये जान लो कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। यस सर। नॉन सर एग्जिस्टेंट उसे भी कंपनी, तो कह सकते हैं ना, जो क्या कह रहे हो? हेलो, जो हम लोग का सामान एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब वो दूसरा सामान ला हाँ सकता हाँ है, वो भी जैसे प्रॉब्लम हम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ठीक है, जो आपको ये सब डिसएडवांटेज होते हैं ई कॉमर्स के सारे डिसएडवांटेज हैं कि प्रोडक्ट आपको दिखाई कुछ और देगा, ठीक है, प्रोडक्ट आपको क्या होगा, दिखाई कुछ और होगा, लेकिन जब डिलीवर्ड होगा तो आपको कुछ और मिलता है, ठीक है। खाली खाए पिए पर खाली लागल खाली पढ़िए भी तो हेलो हेलो पैसा हेलो, अनवांटेड साउंड है सर। कौन है, क्या कह रहे हैं, घर वाला पेरेंट्स मैं। लग रहा, यस सर, Yes, डाल रहे हैं sir. किसी को। मैं समझ ही नहीं पाया क्या कह रहे थे वो। बोल रहे थे कॉपी बुक लग रहा है, पढ़ नहीं रहे हो बस। कौन था वो, नाम बताओ, उस बच्चे का नाम बताओ। कि किसी के पापा होंगे सर। ना ना बच्चा कौन था ना, पापा से मुझे क्या कृष्णा होगा मतलब। हिमांशु कुमार था। अच्छा चलो उससे बात किया जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज, ठीक है। सेकंड आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि जिस कंपनी से आपने परचेस किया, ठीक है, वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने जिस भी कंपनी से अपने प्रोडक्ट को ऐसे कैसे हो सकता है सर, वो फेक वेबसाइट। हेलो आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी, क्यों ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप उस आगे सर। हाँ उस कंपनी को आप नहीं जानते, ठीक है, वो नया कंपनी है, लेकिन आपने उसने क्या कर लिया, आपने उस पर परचेसिंग कर लिया, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, उसने नाम कुछ बदल दिया है, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट कर दिया है, क्या कर दिया, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और आपने वहां से क्या कर लिया, परचेसिंग कर लिया, और वो नहीं करता है, वो बस इतने के लिए ही है कि आपके साथ क्या कर सके, चीटिंग कर सके, आपके साथ फ्रॉड कर सके। स्नैपडील हाँ तो कई सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो है ही नहीं, आपने उस पर क्या कर लिया, परचेसिंग कर लिया है, होना इन द सेंस तो फेक आपको होती है प्रोडक्ट, सर। हाँ फेक आपको Fake वेबसाइट्स वगैरह होते हैं। इसको बुला लेता है, ही करता है, वो करता है। क्या नाम है आप बताएंगे, बच्चे का नाम बताएं जरा, फिर बात करेंगे हम। हेलो हेलो बच्चे हेलो का सर। नाम, हेलो हाँ बताएं। हिमांशु कुमार नाम है। अच्छा हिमांशु कुमार, हाँ पता नहीं इसको आप लोग देते हैं वर्क के नहीं देते, कुछ पर्पल करने का नहीं देते ना इसको। ना वर्क तो रेगुलर जाता है, रेगुलर वर्क जाता है। बच्चों बताओ जरा, स्टूडेंट्स बताओ, आप लोग वर्क जाता है कि नहीं जाता है? यस सर, जाता है। यही है ना हिमांशु कुमार, एडमिशन नंबर 9542, इतना जाता है इसको। 9542। मैं इनसे बात करता हूँ अभी, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं बात करूंगा इनसे, मैं इनका एडमिशन नंबर ले लिया हूँ, ठीक है, मैं बात करूंगा इनसे। आप ध्यान दीजिए निश्चिंत सर, रहे, इसमें ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है। ना ना ध्यान देगा, मैं बात करता हूँ इनसे, क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, ठीक है, निश्चिंत रहे। अभी दे दें, बच्चा पढ़ ले थोड़ा बहुत, अभी दे दें उनको, फोन दे दें, बात उनसे आ जाए। तो स्टूडेंट्स, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, तो कंपनी विल नॉट एग्जिस्ट, वी विल। थर्ड इज स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मे बी योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील बाई समवन एल्स, ठीक है, किसी और के द्वारा आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड में ही रखा जाता है। फ्रॉडमेंटल पेमेंट, ठीक है, आपके पेमेंट के साथ क्या किया जा सकता है, फ्रॉड भी किया जा सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है, वाइल जस्ट डूइंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट
आप खरीद रहे हो तो वो आपको डिलीवर्ड हो, ठीक है, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है उसी में आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना चुरा सके, अच्छा सर, ठीक है, कोई ये पेमेंट सबसे वगैरह में आपको बचने प्रॉब्लम के ना लिए- हो। हाँ, ये सबसे बचने के लिए क्या करेंगे हम? अभी बताया जाएगा आपको, ठीक है, अभी तो बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें बताई जा रही है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस होता है, ठीक है, अभी आप सीखोगे कैसे उससे बचना भी है, ठीक है। तो और कई तरीके के आपके हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपके क्या कर लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ई कॉमर्स पे आप रहो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सेफली अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह को शेयर करना होता है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है आपको सेफली शेयर करना होता है। सी द मेजर्स टू स्टॉप दिस फ्रॉड में इंक्लूड, क्या रीजंस है, ठीक है, क्या क्या उसको क्या आपके स्टेप्स हैं, आप इनसे बचना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट इंश्योर द sanctity of e-commerce company and delivery of good service are as promised, ठीक है, कभी भी आपको क्या है, प्रॉपर कंपनीज जो भी आपके हैं, जो कंपनी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से क्या करना चाहिए, परचेसिंग वगैरह करना चाहिए, ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हो डिलीवर्ड हो जाए आपके होम एड्रेस पे। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय द ई कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवे टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्सनल जो भी आपके क्या होते हैं, पेमेंट वगैरह के जो भी मेथड्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर आप यूज करते हो तो। ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑन द सेलिंग ऑफ यूजर्स डाटा टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, और सारे जो भी आपके सिक्योरिटी रीजन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, चाहे जो भी आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह होते हैं, वो सारा क्या होना चाहिए, वेबसाइट पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी आपके यूजर्स हैं वो उसको क्या कर सके, पढ़ सके और आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। एंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बात भी हमने किया कि कभी भी आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो तो सेफ वेबसाइट्स को ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो सेफ वेबसाइट्स आप कैसे चेक कर पाओगे, तो दो मेथड से आपको पता है कि एक तो क्या होना चाहिए, पहला HTTPS होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, HTTPS। हाँ HTTPS होना चाहिए, एंड सेकंड वो क्या होना चाहिए, पैडलॉक सिंबल्स आप उसमें आपको ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको वही बता रहा होगा, सेकंड एक चीज आपको बता रहा है, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहिए। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी, वेरी गुड, कैश ऑन डिलीवरी आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो भी आपके प्रोडक्ट आप क्या करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो मैक्सिमम आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑनलाइन पेमेंट ना करके आपको कैश ऑन डिलीवरी ही करना चाहिए, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट आपको पास आ जाए, जब आप उसको चेक कर लो, ठीक है, पूरी तरीके से आप श्योर हो जाओ, तभी आप उसको क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए। Second thing is, ma'am, type the URL of the website in the address bar of the browser on your own, ठीक है, do not click on a link that takes to this website, or do not cut or copy the link to this website and paste it. Type the URL on your own in the address bar of the web browser। एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि किसी भी, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करने जा रहे हो, तो कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, लिंक को आपको लिंक पे आप क्लिक करके आप वो वहां पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें, ठीक है, किसी भी लिंक को कॉपी करके पेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आपको उस वेबसाइट पे आपका क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है, जिस भी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन आपको करना है, ठीक है, तो जिस भी वेबसाइट पे आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके यूआरएल को आप क्या करो, सेल्फ टाइप करो। जैसे आपको मान लो कि फ्लिपकार्ट पे ही आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है, तो फ्लिपकार्ट आप खुद टाइप करेंगे, फ्लिपकार्ट आप क्या करेंगे, खुद टाइप करेंगे वेब ब्राउजर पे जाके, मींस गूगल पे आप जाते हो, ठीक है, गूगल पे जाओ और फ्लिपकार्ट आप क्या करोगे, वहां पे टाइप करोगे, ठीक है। कोई भी लिंक वगैरह को आप क्या कर सकते हो, पेस्ट ना करो, कॉपी पेस्ट वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों से बचना होता है, मोबाइल से करेंगे ना। हाँ, हेलो, सर ये मोबाइल हाँ, मोबाइल फोन कंप्यूटर हाँ। सिस्टम कुछ पे भी आप कर सकते हो, कोई भी डिवाइस आपके पास है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका, डिलीवरी कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो, सर हम लोग पहले ऑर्डर Okay, करते हैं तो sir. उसी टाइम जरूरी होता है कि मतलब पेमेंट भी करना इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कैश डिलीवरी कैसे होता है? कैश कैश ऑन डिलीवरी उसपे लिखा रहता है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब कि Add to cart, जैसे दुकान पे आप जाते कैश हो, ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी होता है। हाँ, मार्केट में आप हाँ, जाते हो, पहले से ठीक है, तो उसपे कोई भी लिखा प्रोडक्ट को रहता आप है। खरीदते हो तो क्या देते हो, पैसा देते हो ना, सेम टाइम पे जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वक्त क्या करते हो, पैसा देते हो ना, ऑप्शन रहता है सर उसपे। ठीक है। तो उसी तरीके से ऑनलाइन पे भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है कि जब आपके पास क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, तभी आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट आपका आ रहा है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। कितना टाइम बचा है? 3 मिनट बचा हुआ है। कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ। ठीक है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, जो भी आपका डाटा ट्रांसमिशन होगा ओवर द इंटरनेट वो क्या होना चाहिए? सिक्योरली होना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। ठीक है, तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मींस कहाँ अप्लाइंग चले गए सर? एनफ टेक्निकल सेफगार्ड सो सर दैट। पॉज हो गया सर, आप पूरा फ्रीज हो गए। हेलो 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 फ्रीज हो गए सर आप। हेलो, अभी क्लियर है। ठीक है ना? तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन व्हेनेवर वी जस्ट शेयर एनी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है, वी हैव टू ट्रांसफर आवर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट सिक्योरली, वी हैव टू ट्रांसफर आवर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट securely. ठीक है, either we are just transferring any file or any type of text, picture, message, whatever we are just sending, that could be what? Secure. ठीक है, तो for security there are 3 things responsible. First SSL, second encryption, ठीक है, and third will be your safe protocol. Safe protocol. Try to understand these 3 terms. इन 3 terms को जल्दी से आप समझने की कोशिश करेंगे. SSL, SSL stands for Secure Socket Layer. Secure Socket Layer. ठीक है, ये आपका एक सिक्योरिटी लेयर होता है जो वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योरिटी लेयर लगाया जाता है ताकि कोई भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हैकर्स या क्रैकर्स होते हैं वो चुरा ना सके। ठीक है, तो SSL कहा जाता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। इट इज अ टाइप ऑफ लेयर, ठीक है ना, that is in between web browser and web server, that is in between web browser and web server to protect our personal information. ठीक है, while ट्रांसमिशन, ठीक है, जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा सर फ्रीज हो गए सर आप। हेलो पॉज हो गया। हेलो हेलो नाउ इट्स क्लियर। यस सर, अब ठीक हो गया। हाँ, तो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में एक लेयर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रांसमिशन हो वो कैसा हो? सेफली हो, सिक्योरली हो। ठीक है, कोई वहां से हैकर क्रैकर्स आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा नहीं सकते हैं। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। थर्ड, डाटा एन्क्रिप्शन, ठीक है, चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू अनरीडेबल फॉर्म। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है? अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हो लिखा होगा कि योर चैट इज इनक्रिप्टेड, लिख के आता है ना। हाँ, जो चैट इज इनक्रिप्टेड मीन्स कि उसको कोई भी आप इंफॉर्मेशन, हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो तो क्या हो जाता है? वो इनक्रिप्ट हो जाता है, मीन्स कि अनरीडेबल फॉर्म में वो चला जाता है और जैसे रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वहाँ पे डिक्रिप्शन वर्क करता है। ठीक है, और रीडेबल फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। POP3 प्रोटोकॉल क्या होता है? वो ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है, ईमेल वगैरह सेंड रिसीव करते हैं तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और लास्ट के लिए हाँ POP यूज किया जाता है। POP3 उसका वर्जन होता है। सेफ प्रोटोकॉल, ठीक है, लास्ट में बता रहा है सेफ प्रोटोकॉल। जब भी आप डाटा, क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करते हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट आती है। हाँ, SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आप जब भी फाइल को सेंड करोगे तो किसी सिक्योर प्रोटोकॉल से ही आप सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे आपका SFTP है ना, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हम लोग SSH भी पढ़े थे, SSH